of our disability and gender sensitization outreach program. Today, we have three very inspiring mothers in our midst. And the topic of our session is narrating experiences mothering children with disability. On behalf of the Department of English and Modern European Languages, University of Lucknow and FISM, an NGO dedicated to people with disabilities, I welcome you all to our today's program. We are very happy that we have with us a brilliant first speaker. We have Arpita Yadav, and I came to know Arpita. I met her through social roles valorization. Arpita works in Haryana, Palwal. She is the founder. She is a person who has developed an alternative path of development and inclusion using creative platforms wherein she has looked at theatre, dance, drama, and other participatory activities. Okay, in this, I would like to mention one thing, that Arpita is a mother of a teenage boy who is now an adult, and his name is Nirbhay. Nirbhay, a very significant name, reminds us of fearless. Yes. He was a child who was born with a rare neurometabolic disorder, which is called infantile refsum. And Arpita chose to look upon this event as her calling. You know, when she gave birth to this child who was found to be with a specific disorder, Arpita initially must have been very disturbed and sad like all mothers. But then she took it as her calling. And she started an effort to chart out a survival path for Nirbhay, which became a crusade for all those with special needs. And Arpita, as a single mother, has worked very hard to bring up this child, and she has set her sights on goal 2020. And in 2020, her goal is to establish a one-of-its-kind pilot models for dyslexia. Now she's working in the area of dyslexia, and she's the founder of Learning Aspiration, where she's planning to start with residential facilities for challenged children, and she has also joined the independent living program of Shaurya Foundation. She is the founder of Shaurya Trust, which is a body of people working in the area of disability, and she is trying to build up residential facilities for such people. She has set up Learning Aspirations. She set it up in 2014, and it is an institution which she heads. And the aim of this institution was to create a single source facilitation center, providing a multi-pronged approach to capacity building. So as an activist, as a carer, as a caregiver, as a mother, she has ensured that there is self-sufficiency among children with learning disabilities. And she's working in this area, providing a platform to impart training, support, and sensitization for parents and caregivers associated with such children. Learning Aspiration has become a school, and it is one of its kind, where all children with academic challenges are learning at their own pace. You know, we see that in the present times, when you look at the results, you find everybody is talking of 100 out of 100. 500 out of 500. Here, these are children who belong to the top spectrum, but in this case, Arpita is looking at our children with special needs who learn at their own pace without having heavy school bags and curriculum that is to be followed by one and all. Arpita has had an outstanding track record, beginning with an assignment as a special educator with ADI. ADI is Action for Ability Development and Inclusion, followed by a multi-dimensional role with Disha. Learning is an integral part of growing, and Arpita continues to grow, develop personally and collectively as part of this organization. She has also been very active in social role valorization, which she joined in 2016, organized by the Keystone Institute India
And if you students remember, we also had a program, a workshop which was conducted by Elizabeth Newell in the month of February at the University of Lucknow. And it is under the guidance and leadership of Elizabeth Newell, Director Keystone, that she has also become a disability expert in her own way. And that is the platform where we ended up meeting Arpita, and we shared our common interests. SRV as a theory has wide-ranging application in India, and it is getting very popular because it serves as a strong foundation for the movement which is known as the deinstitutionalization movement. I will now invite Arpita. You see, normally when we run an institution, we work for an institution, we are always looking forward to listening to scholars, philosophers, writers. But in this case, today on this platform, we have activists, mothers. These are ordinary women who have made an extraordinary contribution to our society. And therefore, we are very proud to introduce them to an audience which is aspiring for knowledge, which has a curiosity to learn more about this world. And I would, before we begin with Arpita, I would request Mrs. Anju Mishra, the administrative head at PISM, to please come on this platform and to please introduce Arpita and maybe say a few words about PISM and what exactly does PISM stand for. And this is going to be a bilingual session, and if there are any questions, you can put them in the chat box. We will have a mixed session with the three speakers, because after Arpita we have Geeta Sehgal, another mother who has been running a Sonal Daycare Center, and then after that we have another extraordinary mom with us, Archana Patil, who hails from Mumbai, and she is an amazing woman. You will be happy to listen to her story, because she has not one but two children with disabilities who have today been able to carve a niche for themselves in the world of dance and science and technology. And these are two children with special needs. So I would request you to stay on till the end, and I can assure you that this is going to be a very different kind of a session for all of you. Thank you for joining us, and over to Anju Mishra ji. बाइलिंगुअल सेशन है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में चलेगा, इसलिए फ्री होकर के आप लोग सवाल पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू रानू जी. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार. अर्पिता जी, स्वागत है आपका. So nice to see you. अर्पिता जी के लिए यही कहेंगे, डांसर, सिंगर, होम डेकोरेटर and what not, and most importantly she plays a role of a mother of Nirbhay. अर्पिता जी के लिए एक चीज कहेंगे, यथा नाम तथा गुण. इनके पेरेंट्स ने शायद ये नहीं सोच के नाम रखा होगा, लेकिन इन्होंने अपना जीवन का ध्येय ही बना लिया है अक्षमता से जनों के लिए कार्य करना, उसी के लिए अपना जीवन अर्पित किया. तो अर्पिता जी अपने अनुभव, अपने विचार के लिए जो भी हम लोगों के साथ साझा करेंगे. Thank you Anju and thank you Ranu. Just one correction here in my introduction, that I am founder of Learning Aspiration, but I am not founder of Shaurya Foundation. I am director of Shaurya Foundation. And Learning Aspiration I began in Jaipur, and after 5 years I have moved to Palwal for a purpose, that there is an organization called Shaurya Foundation Trust, and I really wanted to understand that. So I choose to come here just because my son is, as Ranu introduced, he's Nirbhay and he's now 20-year-old, and he born with it. So just wanted to share that I am right now currently in Palwal, and I am director of Shaurya Foundation Trust, where I am working with the independent living program, which means that we are working with the adults with disabilities, and we are preparing them to go back to the society to contribute as me and you, as everyone is contributing to the society, because the most
difficult answer is for the parents with this parents of children with disabilities, that what after us has to be answered now in front of us. So that is the purpose to join this program and to run this program and to understand this program, because so many institutions are coming up. And again, being a partner with SRV, being a part of SRV, social role valorization, I am not for having institutionalization of person with disability. So philosophically also and सिद्धांतिक रूप से भी मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ कि उनको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए और उनके लिए अलग जगह बना दी जाए, because they are part of the same society where me and you are. वो बच्चा हमारे ही किसी के घर में पैदा होता है और हम सब उसी समाज का हिस्सा होते हैं. So that's why, and this program is very beautiful because it ensures that economic independence. It ensures that independence in all the aspects of life. So self-reliance is the motto. Then and it works with the severe disability. So here we have seen multi-pronged approach, and we are doing fantabulous even on online platform. Our students are mesmerizing us with their success. About my journey, I have never wanted to be a teacher or like this. I wanted to be, I am an MBA, so I wanted to be in the corporate sector, but it happened. I got my first daughter and she was born with certain disability and she died after a surgery, and I got Nirbhay, and Nirbhay born with the rarest of rare condition, and that made me introduce about this sector which we call disability sector. Uske pehle mere liye ye sara sector ekdam naya tha. So as a mother, it was first, my reaction was the reaction of rejection. I rejected my child completely. Almost for 1.5 years, I was not ready to accept my child as my child. I was doing everything for him as a matter of fact, being mother, I have to do. But I never wanted. It was a fight between me and God. It was a fight between me and myself. So that was the journey I have gone through, and then once I have accepted him fully, and I decided that he will survive no matter what, and he will not survive on ventilators, because how many times he has been on ventilator I even cannot count now. So that was the journey. He learned to walk at the age of 7. He learned to sit at the age of 5. He learned to be toilet trained at the age of 15. But now he is totally independent in his activity for daily livings. He is looking forward for the more learning and more growth, and I am sure that by the end of 2025 he will be an independent and a money earning person for the family. And he is a music lover. I call him a live music himself, because he lives music, he eats music, he breathes music, he sleeps music. Music is his life. So, and he has immense capacity of selecting favorite songs even out of 5,000 songs. So निर्भय की डिसेबिलिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया बेसिकली, क्योंकि उसका रेयर सिंड्रोम था, तो उसके लिए मुझे पढ़ना बहुत पड़ा. यहाँ पे टेस्ट नहीं होते थे, यूएस हम सैंपल्स भेजते थे, और इस तरह से करते करते उसके बारे में जानते जानते जब आदि में पहुंची एज ए मदर, तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं स्पेशल एजुकेशन करूं. चूंकि मेरी मैरिड लाइफ भी अब्यूजिव लाइफ थी, तो वो भी एक बाधा थी, और वहां पे चॉइस थी कि इधर चूज निर्भय और आप मुझे चूज करिए. तो मैंने निर्भय को चुनकर मैं घर छोड़कर निकल आई थी. I finished my course and I started working as a special educator in 2003 and 2004. So वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई है स्पेशल एजुकेटर के तौर पर. तब से लेकर अब तक बदलाव बहुत आए हैं. नो मैटर, I would say कि जब उस समय तो शायद कोई ऑटिज्म या इन सब शब्दों के बारे में नहीं जानता था इतना जितना अब लोग जानते हैं. यहाँ पे मुझे लगता है काफी यंग लोग भी हैं जो सुन रहे हैं. मेरा जैसे वो लोग अपने लिए सपने बुनते हैं, ऐसी मैं भी एक सपने बुनती थी कि ये होगा और वो होगा, मेरे बच्चे होंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, क्या बनेंगे. एवरीबडी लाइक दैट. आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद. तो कोई ऐसी बहुत बड़ी एस्पिरेशंस नहीं थी, एक सिंपल सी जिंदगी की एस्पिरेशन थी, पर जिंदगी ने बहुत धक्के देके कहीं पहुंचा दिया था. बहुत कुछ सीखा उससे कि पहले शिकायतें होती थी कि क्यों हुआ क्या हुआ, पर अभी नहीं है.
लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहती हूँ कि जब हम इस एज पर हैं तो हमें पता होना चाहिए इस सेक्टर के बारे में भी, क्योंकि हमारे आसपास लोग होते हैं और हम पहचान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हम उनके साथ दोस्ती नहीं करते, हम उनके साथ उठते बैठते नहीं, और वहां से जो वो सेक्लूजन शुरू होता है फैमिली का, उस व्यक्ति का, उस परिवार का, वो बहुत पेनफुल होता है। वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है उस पेरेंट के लिए, फिर उस व्यक्ति के लिए, और यहीं से हम डिवाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा समाज वैसे भी काफी डिवाइड वाला समाज है, हम लोग बहुत बटे हुए हैं, कहीं जाति के आधार पर, कहीं रंग के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, तो हम लोग वैसे ही बहुत बटे हुए हैं। और उसमें एक और भेद आ जाता है कि डिसेबिलिटी वाला। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है अबाउट दिस एस्पेक्ट, सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट। अंजू जी, कैन आई? यस प्लीज। सोसाइटी का हिस्सा है डिसेबिलिटी, पर सोसाइटी उसको कम्प्लीटली नकार देती है और एक्सेप्ट नहीं करती है। वो होता क्यों है कि अगर हम सोसाइटी, दिस इज हाउ वी आर। सबसे पहले एक बड़ा यूनिट है जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं, और उसकी एक छोटी सी यूनिट होती है फैमिली, और उस फैमिली में एक इंडिविजुअल होता है। सोसाइटी करती क्या है? सोसाइटी रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, नॉर्म्स बनाती है, और इससे हम सबको बांध कर रखती है। फैमिली क्या करती है? उन रूल्स और रेगुलेशंस में से उन वैल्यूज को, उन एथिक्स को अपने समाज के सदस्यों को सिखाती है, अपने परिवार के सदस्यों को वो दिखाती है, सिखाती है। और इंडिविजुअल जो होता है वो सब उस फैमिली से सीखता है, समाज से सीखता है। ये एक ढांचा होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल रह रहा था, चाहे वो डिसेबिलिटी वाला हो, चाहे विदाउट डिसेबिलिटी वाला हो। ऐसे ही हम सब लोग रह रहे होते हैं, और हम सब लोग बहुत सारी चीजें अपनी सुविधा के अनुसार मान रहे होते हैं या नहीं मान रहे होते हैं, अपने कल्चर के अनुसार मान रहे होते हैं या नहीं मान रहे होते हैं। कुछ चीजें जो हमारे कंफर्ट में आती हैं उनको हम मान लेते हैं, कुछ चीजें जिनसे हमें डिस्कम्फर्ट होता है हम नहीं भी मानते। सो दैट्स हाउ वी फॉलो दिस रूल्स, रेगुलेशन, वैल्यूज एंड एथिक्स। इंडिविजुअल जो है वो अल्टीमेटली उसी सोसाइटी का हिस्सा है और उसी फैमिली का हिस्सा है, और फैमिली जो है उसी सोसाइटी का हिस्सा है, और वो इंडिविजुअल भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है। किसी भी इंडिविजुअल की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ चाहतें होती हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, हर एक के साथ होते हैं। अपॉर्चुनिटीज भी सबको मिलती हैं, कुछ बाधाएं भी सबके रास्ते में आती हैं, और सबके कुछ अधिकार भी होते हैं। अगर यहाँ पर हम जितने लोग बैठे हैं, अगर हम अपने आप को एज एन इंडिविजुअल यहाँ रख के देखें तो हमें पाएंगे हमारे सामने ये सारी चीजें आती हैं। हमारी अपनी कुछ जरूरतें हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। हम उसमें से कुछ को चुनते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी जो हम चाहते हैं उसके लिए नहीं भी मिल पाती है, तो हमें अफसोस भी होता है। कभी हमारे सामने अलग अलग तरीके की बाधाएं आ जाती हैं, बैरियर्स आ जाते हैं। हमारे भी कुछ अधिकार हैं, कुछ अधिकारों का प्रयोग हम कर पाते हैं, कुछ अधिकारों का प्रयोग हमें नहीं कर पाते, कुछ अधिकार हमें पता होते हैं, कुछ अधिकार हमें पता ही नहीं। सेम फैमिली का है कि फैमिली की भी कुछ जरूरतें होती है, कुछ आशाएं होती हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जो फैमिली का है। वो उसको सपोर्ट भी देते हैं और उससे एक्सपेक्टेशंस या उम्मीद भी रखते हैं। सेम उनके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, उनकी भी कुछ बाधाएं होती हैं, वो कुछ चीजें कर पाते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, और कुछ अधिकारों का प्रयोग वो करते हैं। कुछ अधिकार नहीं करते, कुछ अधिकार उन्हें पता नहीं होते। सोसाइटी का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, किसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं हर सोसाइटी के, हर कल्चर के, हर रीजन के, हर प्रांत के अलग अलग होते हैं। वैल्यूज अलग अलग होती हैं, चैलेंजेस भी अलग अलग होते हैं, डिमांड्स भी होती हैं सोसाइटी की कि किसी व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, किसी व्यक्ति को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किसी व्यक्ति को किस तरीके से क्या करना चाहिए, उसके अधिकार कितने हैं, ये भी कई बार सोसाइटी बहुत हद तक निर्धारित करने की कोशिश करती है, और बाधाएं भी आती हैं। अब अगर इसी फ्रेमवर्क में अगर मैं किसी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को रखती हूँ और उनको देखते हैं, तो हम ये मानेंगे कि उनकी, ये तो हम सब एग्री करेंगे कि उनकी नीड्स और हमारी नीड्स में कोई अंतर नहीं है। बेसिक जरूरतें हम सबकी समान हैं, और सेम वे उनकी फैमिली की जरूरतों और किसी और न्यूरोटिपिकल व्यक्ति की फैमिली की जरूरतों में कोई अंतर नहीं है। हम सबकी जरूरतें एक समान हैं, हम उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। बात आती है चाहतों की। हर इंडिविजुअल कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसकी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं,
बी इट पर्सन विद डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी। एंड हर वो व्यक्ति के सामने कुछ चैलेंजेस आता है। अब यहाँ पर चेंज आता है, मेरे और आपके चैलेंजेस के मुकाबले उस व्यक्ति के चैलेंजेस अधिक होते हैं, खुद उसकी कुछ जो लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से, उसके अगर मेडिकल इश्यूज हैं उसकी वजह से, उसके हेल्थ इश्यूज हैं उसकी वजह से, प्लस उसका जो एक ओवरऑल वे ऑफ लर्निंग है, सीखने का तरीका है, किसी चीज को अप्रोच करने का तरीका है, वो अलग होने की वजह से उसके सामने बाधाएं ज्यादा आती हैं। और सबसे बड़ा कारण है इसका कि नंबर कम है। हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी का नंबर एक न्यूरोटिपिकल यूथ के मुकाबले, पर्सन विद डिसेबिलिटी यूथ की अगर मैं बात करूं तो नंबर कम है। सो उनके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ज्यादा नंबर में लोग होते हैं उनके लिए सुविधाएं जल्दी आती हैं, पहले आती हैं, उनको कंसीडर किया जाता है, समाज नंबर से चलता है, तो इसलिए उनके चैलेंजेस ज्यादा हो जाते हैं। बात आती है अपॉर्चुनिटीज की, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी कम है, क्योंकि वो जो काम कर पाते हैं, जितने काम कर पाते हैं, जिस तरीके से कर पाते हैं, जिस तरीके से सीख पाते हैं और जितनी उनकी क्षमताएं होती हैं, उसके आधार पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन की बात करें, हम इंक्लूजन की जब बात करते हैं, हम उनके लिए स्कूल में कह तो देते हैं एडमिशन है, पर क्या वहां पे वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो उनको चाहिए, जिससे कि वो उस अपने पेस के साथ, उस क्लास के साथ, अपनी उम्र के व्यक्तियों के साथ आगे बढ़ सकें। दूसरा, उनकी रेडीनेस खुद की कितनी है, स्कूल की रेडीनेस कितनी है, आसपास के लोगों का व्यवहार कैसा है, तो वो सब होता है। तो अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत कम होती है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अल्टीमेटली वो फेल्योर की रेसिपी हो जाती है उनके लिए। रादर देन हैविंग अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, वो फेल्योर का एक्सपीरियंस हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाधाएं बहुत सारी हैं, बाधाएं फिजिकल लेवल पर भी आती है, एटीट्यूडनल लेवल पर भी आती हैं, और जो एटीट्यूडनल लेवल की बाधाएं हैं वो सारी बाधाओं में सबसे बड़ी है, क्योंकि अगर मेरा एटीट्यूड ही नहीं है किसी व्यक्ति के प्रति संवेदना का, किसी व्यक्ति के किसी एक ग्रुप को लेकर मेरी एक सोच ही नेगेटिव है या अलग है, तो मैं उसके लिए कभी भी अपने यहाँ जगह नहीं बनाऊंगी। सो वो बैरियर वहां से सबसे पहले आता है, और अगर एटीट्यूडनल बैरियर ना हो तो फिजिकल बैरियर्स और अदर बैरियर्स बहुत हद तक सुधारे जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, उन पे काम किया जा सकता है। अधिकार, पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपने अधिकारों की जानकारी 90% नहीं हो। मैं 90% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बताया ही नहीं जाता, ये उनको उस तरीके से देखा ही नहीं जाता, सिखाया ही नहीं जाता, तो अधिकारों की जानकारी नहीं होती। परिवार और समाज को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं होती, और परिवार समाज ये मानता भी नहीं है कि उनके कोई अधिकार हैं। सो ये सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं। वही इंडिविजुअल है, बस यहाँ पे न्यूरोटिपिकल की जगह वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इतना सा ही फर्क है। अब अगर हम फैमिली पर आते हैं, एक फैमिली जो न्यूरोटिपिकल व्यक्ति के साथ रहती है और एक फैमिली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ रहती है, जरूरतें सबकी समान है, उम्मीदें भी सबकी समान है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम सबका अलग अलग होगा, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी को सपोर्ट ज्यादा चाहिए रहेगी, एक्सपेक्टेशंस बदल जाएंगी, अलग तरीके की हो जाएंगी, और ये एक जर्नी है, आसान नहीं है। जब द मोमेंट कोई भी फैमिली में एक बच्चा आने वाला होता है, उसके चारों तरफ सपनों का जाल बुन दिया जाता है, वो माँ का भी होता है, वो पिता का भी होता है, वो पूरे परिवार का होता है। वो जब सपनों का जाल टूटता है, बिखरता है, उन टूटे हुए टुकड़ों से नए सपने बुनना मोस्ट डिफिकल्ट है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, क्योंकि जो सपने आपने बुने होते हैं उस बच्चे के इर्द गिर्द वो सारे सपने बुरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सो वो उम्मीदें नई पैदा करना, उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नया फ्रेमवर्क बनाना, एक नया ही अपने लिए चश्मा क्रिएट करना, इस चश्मे से इस दुनिया को देखना है, इसको समझना है, आसान नहीं है। वो जर्नी सबसे टफ होती है, लेकिन वो जर्नी जितनी जल्दी पूरी हो जाती है उतना ही अच्छा होता है। सो एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं, सपोर्ट सिस्टम ज्यादा चाहिए रहते हैं, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। कहीं किसी परिवार में चाहे वो करियर का सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे करियर पाथ चेंज करना पड़े, चाहे फैमिली में सेपरेशंस हो जाएं, डिवोर्स हो जाएं, अब्यूज हो जाएंगी, सब कुछ इस तरीके की बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। बहुत मैं कहूँ बहुत ही कम
शायद मुझे नहीं लगता कि हर फैमिली बहुत कंडूसिवली अपने पर उस व्यक्ति, जो विशेष व्यक्ति है, उसके प्रति काम करती है। बहुत कम फैमिलीज में ऐसा आता है कि सारी फैमिली मिलकर उन चैलेंजेस का सामना करती है, बहुत कम नंबर है। सो वो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, इंडिविजुअल के जो चैलेंजेस हैं प्लस फैमिली के चैलेंजेस। बाधाएं बहुत सारी आती हैं फैमिली के सामने, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल। सोसाइटी से वो बाइकआउट होने लगते हैं, फिजिकल बर्डन, वर्कलोड बढ़ जाता है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है और इमोशनली ड्रेन होने लगते हैं। ये सारे बैरियर्स उनके सामने आते हैं और कई बार फैमिली अपने भी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती और बच्चे के अधिकारों के प्रति भी जागरूक नहीं होती, या उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने की आजादी नहीं है। सोसाइटी की बात करें तो जिस भी सोसाइटी में, जब कोई भी सोसाइटी अपने बिलीफ सिस्टम से चलती है, सोसाइटी किस तरीके का बिहेव करती है, सोसाइटी उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति नकारात्मक बिहेव रखती है क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम से हैं, कर्मों का फल, ईश्वर की देन, दिव्यांग, विकलांग और पता नहीं क्या, बहुत सारे विचारगी वाले बिलीफ सिस्टम्स हैं सोसाइटी के, जो चले आ रहे हैं बहुत समय से, जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। उनकी अपनी वैल्यूज है, उन वैल्यूज में वो व्यक्ति फिट नहीं होता तो वो परिवार भी फिट नहीं होता। चैलेंजेस ये हैं कि सोसाइटी इज मिक्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिलकर, बहुत सारी फैमिली यूनिट्स मिलकर सोसाइटी बनाती है। उस पूरी फैमिली यूनिट्स में अगर एक या दो फैमिली यूनिट्स ऐसी हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली है, नंबर कम है, सो उनके चैलेंजेस को वैल्यू नहीं किया जाता, बल्कि उनके चैलेंजेस को वैल्यू किया जाता है जिनका नंबर ज्यादा है। उनकी डिमांड, सोसाइटी की कुछ डिमांड्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड्स होती हैं, अगर उनको पूरा नहीं किया जाए तो भी सोसाइटी बाधाएं पैदा करती है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हमने ऑनर किलिंग बहुत सुना है, ऑनर किलिंग बहुत होती है हमारे यहाँ। ऑनर किलिंग है क्या? बेसिकली अगर किसी व्यक्ति ने अपने हिसाब से अपने अधिकारों का प्रयोग करके, अपनी चॉइस का प्रयोग कर लिया, अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपनी चॉइस के व्यक्ति के साथ शादी कर ली, संबंध बना लिए, वो स्पेशली लड़कियों के साथ ये बात आती है, तो वो एक इज्जत का मुद्दा बन जाता है उस समाज के लिए और उसमें ऑनर किलिंग तक कर दी जाती है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हाउ आवर सोसाइटी थिंक्स, कैसे वो सोचती है हमारी सोसाइटी, वैसे ही सोच वो सोसाइटी की पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी है। उसी तरह से वो बाधाएं पैदा करती है और उनको उनके राइट्स का एक्सरसाइज नहीं करने देती, बल्कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है सोसाइटी ऐसे टाइम। अगर हम बात करें, अगर हम अपने आप को देखते हैं कि हम सब लोग जो सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम किस चीज की एस्पिरेशन रखते हैं, हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें समझ में आएगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हमसे किसी भी तरह से अलग नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग गुड थिंग्स इन लाइफ चाहते हैं। क्या होती हैं वो गुड थिंग्स? अगर मैं बात करूं तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दृष्टिकोण में देखें तो सुंदरता को वैल्यू दी जाती है। आपके पास कौन से ब्रांड का फोन है, कौन से ब्रांड के कपड़े हैं, आपके पास बैंगलो है कि आपके पास कार कौन सी है, आपकी हेल्थ, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कौन सी वेकेशंस पे आप जा रहे हैं, किन जगहों पे आप घूमने जाते हैं, आपके पास पावर कितनी है, आप कौन सी पोजीशन पर हैं। कलर, हमारे देश में सबसे ज्यादा फेयर एंड लवली बिकती है, कलर को बहुत वैल्यू दी जाती है एंड ब्रांड्स के पीछे हम पागल हैं। तो ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा हमारे समाज में वैल्यू दी जाती है, जिनको हम गुड थिंग्स कहते हैं। एंड एवरीबडी एस्पायर्स फॉर दीज थिंग्स एंड नथिंग रॉन्ग इन एस्पायरिंग फॉर गुड थिंग्स। यूथ को वैल्यू दी जाती है, हेल्थ को वैल्यू दी जाती है, नएपन को वैल्यू दी जाती है। These are multiple things which we aspire for. कैसे अचीव करते हैं हम ये चीजें? हमारे पास अच्छा करियर हो, बेटर जॉब हो, बेटर पे रोल्स हो, हमारे लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, चॉइसेस होती हैं, we exercise all those things and we get those good things in our life. और ये जो above roles हैं, ये हमें good things in life को कैसे अचीव कराते हैं? क्योंकि जब हम इन रोल्स में होते हैं, हमारे पास अच्छा करियर होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बेटर पे रोल्स होते हैं, तो हमारा क्या होता है? हमारी कॉम्पिटेंसीज बढ़ जाती हैं, हमारे इमेज बेटर हो जाती है इन द आईज ऑफ द फैमिली, इन द आईज ऑफ द सोसाइटी। हम लोगों की एक जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाती है, हमारी खुद की निगाह में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सो दैट्स व्हाट वी ऑल एस्पायर फॉर। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी को हम कैसे देखते हैं।
ये तो हम लोग एस्पायर कर रहे हैं अच्छी चीजें अपने जीवन में ना, और सबका हक बनता है, अच्छी बात है। डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी को हम कैसे देखते हैं? बोझ की तरह, दया की तरह, चैरिटी की तरह, लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, कुछ नहीं कर सकता ये, इसके ऊपर तो हंसना चाहिए, या फिर ओवर प्रोटेक्शन में रख देते हैं, या ये इनको भगवान कुछ ले लेता है, इन्हें कुछ ना कुछ देता जरूर। हम ये मान के चल लेते हैं कि हर पर्सन में डिसेबिलिटी में कुछ अलग स्किल होगी। जरूरी नहीं है, ही कैन बी एन ऑर्डिनरी मैन, ही कैन बी जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, बट हम ये मान के चलने लगते हैं कि कुछ एक एग्जाम्पल्स की वजह से कि ये 70 स्किल्स सब में होती हैं। इनह्यूमन, इंसान ही नहीं है, लेसर ह्यूमन, कम है इंसानों से, या एक एडल्ट को भी हम बच्चा मान लेते हैं, हमेशा के लिए बच्चा। हम ये भी मान लेते हैं कि इनकी कोई डिजायर्स नहीं है, इनके कोई एस्पिरेशंस नहीं है, इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, एंड सो एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन राइट दैट हाउ वी लुक्ड अपॉन डिसेबिलिटी एज। क्योंकि हमें खाली इस पे फोकस नहीं कर रहा है कि हाउ वी लुक्ड अपॉन, हमें ये भी फोकस करना है कि हाउ सोसाइटी शुड बिहेव। सो अभी कैसे बिहेव करती है पहले वो समझ लें। सोसाइटी क्या करती है? डिस्कार्ड करती है, फिजिकली, इमोशनली, एटीट्यूडनली, क्योंकि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आप नजरों के सामने नहीं है, आप हमें दिख नहीं रहे हैं, तो हमारे लिए आप एग्जिस्ट भी नहीं करते। डिनाई कर देती है कि उनको कोई एक्सेस नहीं होता, जो चीजों पे सबका एक्सेस है, जहां तक सब लोग पहुंच सकते हैं वहां वो नहीं पहुंच सकते। अपॉर्चुनिटीज को डिनाई करती है, उनके एग्जिस्टेंस तक को डिनाई कर देती है, और उनके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाती है, और तो और किलिंग करती है। उनके अधिकारों को डिनाई करती है, दे डोंट हैव एनी राइट्स, बिकॉज वो कैसे समझे जाते हैं? वो तो इनह्यूमन समझे जाते हैं, इसलिए उनके कोई अधिकार नहीं हो सकते। क्या डेवलप करती है उनके लिए? आइसोलेशन, हेट्रेड, पिटी, चैरिटी, क्योंकि जो देता है वो ये मान लेता है कि मैं महान हूँ, लेने वाला वीक है, कमजोर है। लेने वाले को हमेशा नीचे करके देखा जाता है, देने वाले को हमेशा ऊपर करके देखा जाता है। सेक्लूजन में रख देती है, आइसोलेशन में रख देती है सोसाइटी। आपने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग तो बना दी, पर उस बिल्डिंग में रहता कौन है? सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट्स इट। तो उसको लेबल कर दिया जाता है, अच्छा वो जो पागलों वाला स्कूल है, अच्छा वो जो उनका स्कूल है, ऐसे करके उनको डेवलप करती है इस तरीके के बिहेवियर और इस तरीके के प्लेसेस। और क्या करती है सोसाइटी डिस्कवर करती है अलग अलग वेज, जिससे कि उनको अलग से एक ग्रुप में करके उनके बारे में बस उनको भूल जाया जाए, उनसे दूरी कैसे बनाई जाए, उनको कैसे, और ये कैसे प्रूव किया जाए कि वो नहीं कर सकते, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और उनके राइट्स का हनन कैसे किया जाए। सो दिस इज हाउ सोसाइटी बिहेव। दे डिस्कार्ड, दे डिनाई, दे डेवलप द वेरियस वेज टू आइसोलेट देम, दे डिस्कवर द वेज टू डिस्टेंस विद देम। Distance can be physical, social, emotional, mental, in any ways. Now, how it should behave, how society should behave. Society should be aware of कि है कौन पर्सन में डिसेबिलिटी, है कौन, डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। अगर वो अवेयर होगी, समझेगी, तभी वो उनको एक्सेस देगी, उनको अलाउ करेगी, उनके लिए सोचेगी। सो एक्सेस के बारे में वो तब बात करेगी। सोसाइटी को इन्फॉर्म होना पड़ेगा अबाउट एवरी पर्सन्स नीड, अबाउट एवरी डिसेबिलिटी, अबाउट एवरी डिफरेंट पर्सन, अबाउट एनी न्यूरो डाइवर्स पर्सन। सोसाइटी का एटीट्यूड बदलना होगा, वो एटीट्यूड सीखने का होगा। जो सीखा हुआ है वो हमेशा सही नहीं हो सकता, या समाज जब समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, तरीके बदलते हैं, और हमें बदलना होगा। सोसाइटी को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी, सोसाइटी को सपोर्ट देना होगा, फ्रेंड बनना होगा, और पार्टनर बनना होगा। दिस इज हाउ वन शुड बिहेव, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ एवरीवन हु इज नॉट एसोसिएटेड विद डिसेबिलिटी इन अ डायरेक्ट मैनर कि अपने आसपास, अपनी कॉलोनी में देखिए, आंखें खोल कर देखिए। देयर मस्ट बी अ फैमिली हु विल हैव अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। Go there, be there, make friends with them, be their friends, be a partner, and it will change the life for you and for them for sure. So this is how one should behave, and also make sure that you will learn about one disability and you will create awareness about that disability in your society, in your colony, in your friend circle. Please make sure that. Because then only when I'm saying society, how should it behave,
सोसाइटी इज अगेन, मैं फर्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ कि सोसाइटी बनती कैसे है. सोसाइटी का हम ही पार्ट है. हम इंडिविजुअल्स, हमारी फैमिली एंड हम सोसाइटी बनाते हैं. तो अगर हम जागेंगे एज एन इंडिविजुअल तो हमारी फैमिलीज और हमारी सोसाइटी भी जागेगी. सो हमें सबको एक साथ मिलकर ये लाना होगा, तभी हमारी सोसाइटी उस तरीके से बिहेव करेगी. सो आई एम कमिंग टू द एंड. I would request all of you to pledge, and I request everyone to speak out loud and clear. Please unmute everyone. I want everyone to speak. Can I request you to unmute everyone?